So dear students, now in the continuation of position of floral organs on the thalamus, which we have studied yesterday, today we are going to discuss about the arrangement of the floral organs and what are the various floral organs. The various floral organs are like calyx, corolla, it is calyx, corolla, andrecium and gynoecium. These are the main floral whorls. So how they are arranged in a flower, on the basis of which you can divide it into two forms, like one is cyclic and another is acyclic. Cyclic means like these are the sepals arranged like this, then again petals they are arranged like this. That means it is like a cycle, it is a complete circle. You can say that if the floral parts or the, you can say, various whorls, if they are arranged in a definite whorls, you call them cyclic. And what is meaning of acyclic? That means arrangement, these floral parts are arranged in a spirals, not in a whorls, because we call it whorl. इसको आप whorl कहेंगे जो ये घेरे के फॉर्म में arranged हैं. These are suppose calyx and these are corolla. तो ये these are corolla, these are calyx and they are arranged in a whorl, है ना, एक घेरे में arranged है. अगर ये इस तरह से है, you call them cyclic. And suppose ये इस तरह से नहीं arrange है, they are arranged in the form of spirals, means like ये ऐसे arrange हैं, फिर ये ऐसे arrange हैं, फिर ये ऐसे arrange हैं. इस तरह से भी फ्लोरल हो सकते हैं, आपने देखा है ना कैबेज में. तो दैट इज़ कॉल्ड स्पाइरल. वो नॉर्मल तरीके से नहीं अरेंज होते, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पाइरल. तो अरेंज इन स्पाइरल, नॉट इन द वर्ल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरल पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड कैलेक्स, CALYX कैलेक्स, और यू कैन से सीपल्स. दोनों चीज़ें इसको बोली जाती हैं, जो मर्जी आप बोल सकते हैं. सीपल्स नॉर्मली हम बोलते हैं इंग्लिश में, एंड कैलेक्स हम जो है बोलते हैं इन द बॉटनी. तो कैलेक्स, व्हाट इज कैलेक्स? कैलेक्स इज द आउटर और फर्स्ट वर्ल ऑफ फ्लावर. दैट मीन्स फ्लावर का पहला घेरा. दैट मीन्स सपोज दिस इज द फ्लावर. इफ आई वांट टू शो यू व्हाट इज कैलेक्स, एंड दीज आर द येलो कलर्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपने यहाँ पर देखे होंगे छोटे छोटे. दीज आर कॉल्ड कैलेक्स, और यू कैन कॉल देम सीपल्स, इनको आप बोल सकते हैं. तो ये सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, दैट मी कॉल इट आउटर मोस्ट वर्ल्ड, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ various separate parts, that is called sepals. If you plug all these, you can sometimes find it that they are like this, पत्तियों की तरह, लीव्स की तरह ऐसे होते हैं, एंड दे आर सेपरेट. आप खींचेंगे तो अलग हो जाएंगे, बट समटाइम्स दे आर ज्वाइंट. दैट मीन्स ये चीज़ जो है वो ज्वाइंट होगी. इफ़ यू ट्राई टू डिसेक्ट इट, आपके पास कोई फ्लावर हो नेबरहुड में, तो आप ज़रूर ऐसा करके देखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो ये ऐसे अटैच्ड भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह से ये हो सकते हैं. एंड नंबर ऑफ सेपल्स वेरी कर सकते हैं. दे मे बी 4, दे मे बी 5, 6, 7 ऐसे भी हो सकते हैं. एंड व्हाट आर द अदर टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द सेपल्स? तो सपोज इफ सेपल्स आर फ्री, लाइक आई हैव शोन इन द डायग्राम, लाइक दीज आर द सेपल्स एंड दे आर फ्री. आपने फ्लावर से प्लग किए तो ऐसे अलग अलग हो गए ये, तो आप इनको बोलेंगे पॉलीसेपलस. वी यूज द वर्ड पॉलीसेपलस. Polycephalus means when the sepals are free, and gamocephalus when they are fused. Sometimes you find that अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो they all are attached with a common sheath. ये ऐसे मिलेंगे आपको, एक साथ निकल के आएंगे सारे लीव्स. तो you call them gamocephalus, GAMO, gamocephalus, OUS. You call them gamocephalus. Gamocephalus means when sepals are fused. Polycephalus means when sepals are free. And sometimes you also find the acephalus. What is meaning of acephalus? Acephalus means there will be no sepals. Acephalus, that means without sepals. Sometimes there are lots of flower where sepals are absent, completely absent, तो कोई sepals नहीं होते, तो उनको आप बोलोगे acephalus. तो this is the one thing. Now another thing is estivation, AESTIVATION. Very important thing, students. What is meaning of estivation? Estivation means arrangement of floral parts in the bud. That means कैसे लगे होते हैं, how they are arranged. So suppose if there is any flower, suppose this is the flower, and because we are talking about the sepals, तो द अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स इज़ ऑल्सो डिफरेंट. आपको लग रहा है ये सब ऐसे एक जैसे सारे फ्लावर्स में होते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड दैट डिफरेंट फ्लावर हैड डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ सीपल्स ऑल्सो. तो उनके बेसिस पर हम उनको नाम दे देते हैं, उनको हम नेम्स दे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट. एंड हाउ यू कैन नो कि ये सिपल्स कैसे अरेंज हैं? सपोज़ ये हम सारा कुछ हटा दें एंड वी हैव ओनली सिपल्स.
we have only sepals. These are the sepals and they are arranged. एंड इनको हम जब कट करेंगे तो जो कट करेंगे तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा कि हाउ दे आर अरेंज्ड. और इफ़ यू सी इट और एग्जामिन इज केयरफुली बिकॉज दिस टॉपिक इज़ बेसिकली फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्क. सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल अबाउट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, बट वेन एवर we get time तो definitely we will dissect a flower and see the things clearly. तो ये बच्चों कुछ ऐसे दिखेंगे आपको. अगर आप इनको ब्लेड से कट कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा. यहाँ से आपने इसको सपोज कट कर दिया ये, तो ये अरेंजमेंट आपको ऐसा नज़र आएगा इस तरह का. और डिफरेंट फ्लावर्स में यू विल फाइंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स. सो हेयर देर आर फ्यू डायग्राम्स विच आर गिवन हेयर in which you have seen that there are different names are also given to these. Like this one is known velvet. Velvet means if sepals are arranged like this, that means these edges, I am talking about these edges. These edges are, you can see that they are meeting together, है ना, ये ऐसे बिल्कुल एक लेवल पे हैं. तो आप इनको क्या बोलेंगे? velvet. That in which individual sepals are arranged in a circle. अगर आप इसको complete ऐसे draw कर दो तो it will become a circle. That means their edges जस्ट टचिंग ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को टच कर रहे थे. जो मैंने अभी ड्रॉ किया यहाँ पर भी आप देख सकते हो, द एजेस आर टचिंग ईच अदर. नाउ अगेन अनदर इज द ट्विस्टेड. उसका नाम ही है ट्विस्टेड. दैट मीन्स सिपल्स ऐसे होंगे इस तरह से, एक एंड ओवरलैप करेगी, एक आउटसाइड होगी, एक ओवरलैप करेगी, एक आउटसाइड होगी. तो ये ड्रॉ करने के लिए बेटा बहुत टेक्निक्स है. दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड. दैट मीन्स एजेस आर नॉट meeting to each other. These margins of these you can say sepals की margins हैं, they overlaps that next one and the other margin is overlapped by the third one. That means one suppose ये इसको overlap कर रही है और ये वाली इसको overlap कर रही है, तो it is called twisted. And next one is imbricate. What happens in the imbricate kind of diagram is given here. You can also see this imbricate. In this estivation, one of sepal is internal and it is overlapped on both the margins, and one of them is external, and three are partially internal and partially external. As you can see in the diagram that here one is completely outside, है ना, एक ऐसा पूरा बाहर रहता है, and जो three हैं वो एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर ऐसे होते हैं. और जो फोर्थ वन होता है वो कम्प्लीटली अंदर होता है, कम्प्लीटली इनसाइड होता है. तो दैट मीन्स कि जो आपके 5 टोटल सेपल्स दिए हुए होते हैं इम्ब्रिकेट टाइप में, उसमें क्या होता है कि वन सेपल इज़ इंटरनल, वन सेपल इज़ कम्प्लीटली एक्सटर्नल, एंड रिमेनिंग 3 आर वन इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरलैपिंग एजेस. एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्विंक्विंशियल विच इज़ ऑल्सो गिवन हेयर. वी कैन help of the ink we can see this one is known as quinquential. अब अगर आप इसको एग्जामिन करेंगे बहुत क्लोजली, then you will find that 2 are internal, this one and this one, 2 are internal and 2 are completely external. ठीक है, 2 तो completely external हैं and 2 internal हैं and 1 partially internal and partially external है. like जैसे ये पूरा external है आपका, इधर से एक हो गया quinquential टाइप में, और दूसरा आपने ऐसे ड्रॉ किया, थर्ड वन आपने ऐसे ड्रॉ किया, एक आपको पूरा अंदर देना है और एक आपको पूरा बाहर देना है. तो ये कम्प्लीटली आउटसाइड, ये कम्प्लीटली आउटसाइड, ये कम्प्लीटली इनसाइड, ये कम्प्लीटली इनसाइड, और दिस इज़ ऑल्सो वन साइड इनसाइड और वन आउटसाइड. तो ये इस तरह तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. अगेन आई विल शो यू हाउ यू कैन ड्रॉ इट. About quinquential I am talking. This one is completely inside, this overlaps it, then again this one, then again one this one, and then again this like this. तो आपने यहाँ पर देखा this is internal completely, ये 2 हो गए ना internal completely, ये this one and this one, ये external है completely बाहर है पूरा, ये भी completely बाहर है पूरा, and it is partially external and partially internal. तो this kind of sepal is known as quinquential. So these all are the about the estivation in case of sepals. Now come to the another slide where we are going to study about the ड्यूरेशन ऑफ द कैलक्स. मीन्स कैलक्स कितने टाइम तक लगा रहता है. सपोज आपने ग्रीन चिली देखी होगी, एंड इफ़ यू सी द ग्रीन चिली, आपने देखा होगा कि सपोज रेड कलर की मैं बना देती हूँ चिली सो दैट यू कैन सी, एंड यहाँ पर ये ऐसे लगा रहता है थोड़ा सा कुछ, है ना. ये आपने ब्रिंजल में भी देखा होगा, लाइक ब्रिंजल में भी ये ऐसे लगा रहता है, इसके अंदर यहाँ पर लगा रहता है ना कुछ भी. तो ये आपको चीज़ ध्यान आ रही. तो व्हाट आर दे आर सिपल्स. ये सिपल्स हैं, ये सिपल्स हैं जो उनके साथ में अटैच्ड रहते हैं जो आप देखते हो. तो दीज सिपल्स, इनके बेसिस पर भी इनको हम अलग अलग नेम दे सकते हैं.
तो some sepals they are fall in the early mature premature condition, that is called caducus. उनको हम वर्ड देते हैं कैडुकस, CADUCOUS, कैडुकस मीन्स वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, सिपल्स मीन्स फ्लावर से या प्लांट से. एंड डेसिडुअस मीन्स होता है फॉलिंग ऑफ अलॉन्ग विद द पेटल्स जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. वो क्या कहलाते हैं? डेसिडुअस. डेसिडुअस मीन्स दे फॉल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. जैसे फ्लावर में उसके पेटल्स गिरते हैं, जब फ्रूट बनता है तो पेटल्स भी गिर जाते हैं, सेपल्स भी गिर जाते हैं, तो दोनों साथ साथ जो है वो रिमूव हो जाते हैं. देन परसिस्टेंट. परसिस्टेंट दे रिमेन अटैच्ड इन द फ्रूट, लाइक मैंने आपको बताया ग्रीन चिली में जैसे कि लगा रहता है सेपल, एंड ब्रिंजल में जिसको एग प्लांट भी बोलते हैं उसमें भी वो लगा रहता है हमेशा. नेक्स्ट कम टू द corolla. Corolla is another important part of the flower. Corolla is the colored part of the flower, है ना. जो भी आप फ्लावर बनाते हो दिस इज कॉल्ड corolla. ये corolla है और इसको आप क्या बोल सकते हैं, आपने इसको पेटल्स भी बोल सकते हैं. तो corolla is the second word of the flower, that means it is present after the sepals. तो you call it petals in general language also. Mostly they are colored and used for the pollination. They can also be from 4 to 6, 7, 8 ऐसे कितने भी हो सकते हैं. You have seen various types of flower, तो आपको पता ही है. And again the terms same terms we are going to use if these petals are attached. There are so many kinds of flowers. If you get a chance to go in the garden and watch different kinds of flower, तो आप देखेंगे बहुत सारे flowers को आप तोड़ेंगे तो उनकी एक एक petals ऐसे अलग हो जाते हैं. And sometimes you have seen that petals will not remove, you can't remove सेपरेटली. ये ऐसे अटैच रहते हैं नीचे यहाँ पर कहीं पर, तो ये पूरी की पूरी ऐसे ही निकलते हैं फ्लावर. अगर आप इनको अलग नहीं कर सकते बीच में से, पर यहाँ पर आप देख रहे हो आप रिमूव कर सकते हैं. तो पेटल्स विच आर फ्री कॉल पॉलीपेटलस, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर केस, दैट आर कॉल्ड पॉलीपेटलस. पॉली वर्ड लगा देते हैं वेन एवर दे आर फ्री, एंड गैमो वर्ड लगा देते हैं वेन दे आर फ्यूज्ड. एंड पेटल तो है ही, तो इसलिए पेटलस वर्ड लगा देते हैं, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस. नाउ कम टू द एस्टिवेशन. इन दिस केस एस्टिवेशन ऑल्सो आपको पढ़ना पड़ेगा कि एस्टिवेशन कैसा होता है. सेम एस्टिवेशन का वैसे ही है जैसे आपने सेपल्स में पढ़ा है. दैट मीन्स दे हैव वेलवेट, दे हैव ट्विस्टेड, दे हैव इम्ब्रिकेट, दे हैव क्विंक्विंशियल, एंड सेम थिंग ऑल्सो. कोई भी डिफरेंट चीज़ उसमें नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ. कि व्हाट इज पेरियंथ? इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरियंथ ऑल्सो. Perianth means, I have told you earlier, perianth. Perianth means when calyx and corolla are fused. Calyx भी and corolla भी, both are fused. तो you can't distinguish each other, है ना, वो एक साथ बिल्कुल अटैच्ड रहते हैं. दैट इज कॉल्ड पेरियंथ. उनको हम पेरियंथ बोलते हैं. एंड जनरली इनको टीपल्स भी बोला जाता है, TEPALS, टीपल्स भी बोल सकते हैं. And they are also, if they are free you can call them polyteplous. If they are fused you call them gamoteplous. बस gamo and poly लगाना है आपको. where they are free poly, use the word poly, and where they are fused use word gamo. Now next is the another term, that is sepaloid. Sepaloid means sepals की तरह से अगर आपको दिख रहा है sepaloid. आपको अगर पेरियंथ सेपल की तरह से दिख रहा है, लीफ लाइक ऐसे दिख रहा है, तो यू कॉल देम सेपोलॉइड. अगर आपको पेटल्स की तरह से दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे इसको? पेटलॉइड. मीन्स थोड़ा बहुत कलर्ड है ये, तो आप उसको पेटलॉइड बोलोगे. जस्ट लाइक पेटल्स, जस्ट लाइक सेपल्स. एंड एस्टिवेशन इज सेम लाइक सिपल्स एंड पेटल्स. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. आपने सिपल्स का लर्न कर लिया तो सब में आपको वो यूज़ हो जाएगा. Now come to the endoecium. Endoecium is another important. You know that it is a essential word, and various kinds of stamens you can see that I have just shown in the diagram, that it is a male flower world. You can say stamens are also known as endoecium, or you can say male flowering part. And how it is look like, this is like, ये आपको एक जनरल सा एक टिपिकल स्टेमन लुक लाइक दिस. दिस इज नोन एज फिलामेंट. It is called filament. This is called anther lobe, ANTHER, anther lobe. And whenever you cut it, you find small structures that are called pollen grains, or you can say these are the male gametes. Exactly. So that means stamens are the male flowering part where pollen grains are developed inside it. So on the basis of fertility, sometimes these stamens are sterile also. That means they are unable to produce the pollen grains. So if they are unable to produce the pollen grains, what do you call them? Then you call them staminode. Staminode. I just want to change the color also. Staminode. Staminode means when they are unable to produce the pollen grain. That means they are sterile. They are not fertile.
Now on the basis of cohesion you give them different kinds of name also. What is the meaning of cohesion? That means how they are attached. That means ये हो गया आपका एंथर लोब. अब इसके साथ में कैसे आपके जो ये फिलामेंट हैं और स्टेमेंस हैं ये कैसे अरेंज हैं फ्लावर के अंदर, उसके बेसिस पर आप इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हो. लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लाइक मोनाडेल्फस. दिस इज गिवन मोनाडेल्फस एग्जाम्पल. व्हाट डू यू मीन बाई मोनाडेल्फस? मोनो मीन्स होता है वन, सिंगल. मोनो डाई आप जानते हैं वर्ड्स. तो मोनोमर्स एज यू स्टडीड इन केमिस्ट्री. तो स्टेमेंट्स यूनाइटेड इन वन ग्रुप. यू कैन सी दैट इन डायग्राम ऑल द स्टेमेंट्स आर इन अ ग्रुप. तो यू कॉल देम मोनाडेल्फस. एंड देयर फिलामेंट्स आर ऑल्सो इन अटैच इन द सेम थिंग, है ना, एक ही जगह पर अटैच हैं सारे. तो मोनाडेल्फस हो गया. देन कम टू द डायडेल्फस. डायडेल्फस मीन्स दीज स्टेमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप्स ऑफ टू. तो आप देखो बंडल्स के फॉर्म में एक ये बंडल हो गया और एक ये अलग सा बना हुआ है ना, यहाँ पर दो हो गया. तो द फिलामेंट्स ऑफ सपोज 9 स्टेमेंट्स आर गिवन हियर. तो आपको 8 आर यूनाइटेड और 1 इज सेपरेट. आप ऐसे समझ सकते हो कि 9 तो ऐसे हो गया 9 + 1. 9 जो हैं वो एक साथ हैं और एक बंडल में, और एक जो 10th है वो अलग पड़ा हुआ है इधर. अगर मैं रिमूव करूँगी यू कैन सी, है ना, इस तरह से अटैच होते हैं. वी कॉल देम डायडेल्फस. देन अगेन पॉलीडेल्फस. यू कैन सी इट इजीली इन द पॉलीडेल्फस केस देयर आर वेरियस बंडल्स विच दे आर प्रेजेंट. दैट मीन्स लाइक ये एक बंडल हो गया, यहाँ पर स्टेमन हो गया, ये दूसरा हो गया प्रेजेंट हो गया, ये तीसरे हो गए प्रेजेंट हो गए, ऐसे करके. एंड ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेम स्ट्रक्चर. अलग अलग नहीं है कहीं पे फ्लावर में, बट दे आर डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट बंडल्स. तो यू कॉल देम पॉलीएडेल्फस. पॉली मीन्स बहुत सारे हो गए उसके अंदर. देन कम टू द syngenesious, another thing which is given here, syngenesious condition. What happens in the syngenesious condition? That stamens are united by their anthers to form a tube around the style. You can see in this properly that ये सारे के सारे एंथर्स जो हैं ऊपर जा कर के, ये तो फिलामेंट हो गए. जो एंथर्स थे सारे वो यहाँ पर क्या हो गए, ये एंथर्स तो ऐसे होते हैं ना इस तरह के, तो दे गेट फ्यूज्ड. ये सारे आपस में फ्यूज हो गए. So this is called syngenesis. That means you can say that anther lobes are fused and filaments are free. Okay. Now come to the next one, that is synandrous. Opposite होता है. All stamens are united throughout their whole length by both the filament and the anthers. Means सब कुछ ही united हो गया. That means यहाँ पर ये जो stamens हैं, ये भी सारे जो filaments थे ये भी सारे unite हो गए. आपको दिख नहीं रहे कि what are the different. और यहाँ पर ये जो इनके वो थे एंथर लोब्स थे, दे आर ऑल्सो यूनाइटेड. मतलब एवरीथिंग इज यूनाइटेड. देन यू कॉल देम synandrous condition, that all stamens united throughout their whole length by both the filaments as well as the anthers. तो नेक्स्ट है आपका polyandrous. Polyandrous means filaments are free. All the terms I am again going to repeat. One is polyandrous. Poly means free, तो दैट मीन्स स्टेमेंस आर फ्री. एंथर एज वेल एज फिलामेंट. लाइक जैसे आपको ड्रॉ कर, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, दिस इज, ये फ्लावर में ऐसे लगे होते हैं बहुत सारे, तो फिलामेंट इज ऑल्सो फ्री, एंथर लोब इज ऑल्सो फ्री. यू कॉल देम पॉलीएंड्रस. व्हेन synandrous, in this case of synandrous, all the stamens united throughout their whole length by both filament and anther, as I told you earlier, उसको हम synandrous कहते थे. And addition of stamen is another thing कि कैसे adhere होते हैं. तो sometimes stamens, these stamens are attached, these stamens, I am talking about these stamens, they are attached to the petal. Suppose कोई flower होगा तो ये flower के साथ ही attached होते हैं, उसमें चिपके रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस. पेटल्स मीन्स आपको पता है पिटल्स, एंड एपी मीन्स उस पर अडियर होने वाले. तो एपीपेटलस मीन्स स्टेमन दैट आर अटैच्ड टू द पेटल्स. किसी भी पेटल्स के साथ ये अरेंज रहें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस. अनदर इज द एपीसेप्लस. दैट मीन्स सीपल से अगर ये अटैच्ड रहें तो उनको बोलेंगे एपीसेप्लस. एपीटेपलस इफ दे आर इंसर्टेड ऑन द टेपल्स. टेपल्स आप जानते हैं, पेरियन था आपने पढ़ा था, तो एपीटेपलस बोल देंगे. गाइनेंड्रस इफ स्टेमेंस stick to the carpels either through their length or by their anthers. That means suppose gyne means होता है गाइनीशियम से बना है ना. गाइनीशियम क्या होता है, समथिंग ओवरी से रिलेटेड चीज़ होती है. तो सपोज दिस इज द ओवरी और स्टेमेंस अगर इसके साथ अटैच रहते हैं थ्रू आउट द लेंथ, सपोज ये स्टेमेंस हो गए, ये इसके साथ अटैच हुए पड़े, तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो फिर इनको हम बोलने लगते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन. मीन्स गाइनीशियम से अटैच्ड हैं ये. तो इट इज़ ईजी टू लर्न द नेम्स. आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू to learn the name. And now come to the next slide, where when we can see different kinds of positions of the stamens and anthers also. Like in this case you can see that this monothecus, this is dithecus.
Why we call them monothecous, dithecous, or here you can see that didynamous and tetradynamous. This is on the basis of the length of the filament. Sometimes you have seen that in this diagram two filaments or anthers, they are very large. That means you can say two androecium is very large. Suppose किसी फ्लावर में ये दो तो बहुत लंबे लंबे से होंगे और ये दो बहुत छोटे छोटे से हैं यहाँ पर, तो इनको हम बोलते हैं डाइडाइनमस. दैट मीन्स आउट ऑफ 4 stamens 2 are long and 2 are short. And in the another case, like we call him tetradynamous. Tetradynamous means tetra means something related to like 4. मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रही हूँ. तो androecium means there are 6 stamens, 4 of which are longer. Suppose मैंने ये 4 बना दिए, 1 2 3 4, they are the longer and the outer 2 आर द स्मॉलर. ये आउटर होंगे और 2 स्मॉल होंगे, 6 होंगे टोटल. दे आर कॉल्ड टेट्राडाइनमस कंडीशन. टेट्रा मीन्स जो बड़े हैं, लार्ज हैं, वो टेट्राडाइनमस कहलाते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑल्सो, सपोज दिस इज़ द फ्लावर, ये कोई फ्लावर है, ठीक है. अब इसमें से स्टेमन्स निकल रहे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, इसी के अंदर होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं. यू कॉल देम इंसर्टेड. दैट मीन्स दे आर इंसर्टेड इनसाइड द कोरोला ट्यूब, है ना, क्योंकि फ्लावर के अंदर है. तो इफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कोरोला, यू कॉल देम इंसर्टेड. एंड समटाइम्स यू हैव सीन दैट इन सम फ्लावर्स दे आर जस्ट आउटसाइड द फ्लावर. इतने लंबे होते हैं कि फ्लावर के बाहर आ रहे होते हैं ये. यू कॉल देम एक्सर्टेड, ठीक है. एक्सर्ट, EXERTED, exerted. You call them exerted when stamens are coming out of the corolla tube. So this is one thing. Now again come to the another terminology, that is monothecous and dithecous. What do you mean by monothecous and dithecous? Monothecous means one celled anther, means इसको कट करोगे तो केवल आपको एक सेल मिलेगी. एंड dithecous means वन, अगर आप इसको कट करेंगे तो आपको इसके अंदर इस तरह से 2 सेल्स मिलेंगी. So that is called monothecous and dithecous anthers. And on the basis of attachment also, come to the next very important slide, and very easy also, you can also give them name. This one is basifixed. What do you mean by basifixed? Basifixed means filament, this is filament, and here this is the anther which is attached like this. तो basifixed माने उसके बेस के साथ में attached है. आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको. आप यहाँ पर ये मैं स्टेमन ले लेती हूँ, तो दिस इज बेसिफिक्स. लाइक ये बेस से आपको अटैच्ड हुआ हुआ दिख रहा है. इसी तरीके से डायग्राम्स विच आर गिवन हेयर, यू कैन सी इट ईजिली, ठीक है. मेरे से बेटर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको डायग्राम, तो ये यहाँ से देखेंगे. नेक्स्ट इज एडिनेट. एडिनेट मीन्स फिलामेंट रन्स अप टू द बेस ऑफ द एपेक्स. मीन्स अगर ये आपका वो है एंथर है, तो ये पूरा यहाँ तक पूरा चला जा रहा है. इफ़ आई चेंज द कलर, ये पूरा इसके साथ अटैच्ड है, ये जो फिलामेंट है ये पूरा यहाँ तक. तो दैट इज कॉल्ड एडिनेट. देन डॉर्सीफिक्स. डॉर्सीफिक्स सिंपल है कि डॉर्सल साइड से, सपोज दिस इज डॉर्सल साइड, तो यहाँ से अटैच्ड है, पीछे से अटैच्ड है, तो डॉर्सल साइड, तो डॉर्सीफिक्स्ड. अगर फिलामेंट अटैच है वर्सटाइल. वर्सटाइल यू हैव सीन इन मैनी बिग फ्लावर्स दैट सपोज दिस इज द फिलामेंट एंड इट इज़ अ बिग वेरी लार्ज एंथर लोब, एंड ये मूव भी करता रहता है. अगर आप फिंगर लगाएंगे तो ये मूव करेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज एंड फिलामेंट इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड शॉर्ट सा होता है. तो उसको बोलते हैं वर्सटाइल. दैट मीन्स ये अटैच होता है, बैक से अटैच होता है, बिकॉज दिस फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर एट अ वेरी सिंगल पॉइंट, बिल्कुल जरा से पॉइंट पे अटैच होता है, सो दैट इट कैन स्विंग, है ना. यू कैन से इट कैन स्विंग फ्रीली. ये स्विंग करता है, हिलता डुलता रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम. नाउ कम टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड गाइनीशियम. And what is important about the gynoecium, that it is the female flower part. And gynoecium has also certain terminologies, because gynoecium you can also call them pistil, you can also call them carpel भी इसको आप बोल सकते हो. And the flower where gynoecium is present, you can call them, flower को क्या आप बोलेंगे, pistillate flower, है ना. कल भी हमने पढ़ा था pistillate flower, that means flower having pistil. And on the basis of various kinds of arrangement of these carpels, we have certain terminologies we have to study about it. That sometimes we call them monocarpellary ovary. That means carpel is made up of 2 units. जैसे हम suppose मैं draw करूँ अगर, तो this is stigma, style, and this is ovary. Sometimes you see that here are एक डिवीजन लाइन से आपको दिखेगी, एंड दीज आर द 2 कार्पल्स. सपोज ये एक कार्पल हो जाएगा और एक ये कार्पल हो जाएगा. तो कॉल्ड बाई कार्पिलरी. अगर 3 हैं, यू कैन कॉल देम 3 ट्राई कार्पिलरी. सपोज आपको ऐसे भी दिख रहा है, 3 एजेस दिख रही हैं, जैसे गार्लिक के क्लोव होते हैं, लाइक दैट. तो ट्राई कार्पिलरी, देन टेट्रा कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी, एंड अगर मोर देन 5 हैं, यू कैन कॉल देम मल्टी कार्पिलरी. दैट मीन्स ovary having many carpels. And apocarpus and syncarpus are also 2 terms. If I remove the ink also, we can see easily apocarpus
एपोकार्पस. व्हाट डू मीनिंग बाय एपोकार्पस? अ पिस्टिल विद 2 और मोर सेपरेट कार्पल्स. इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि समटाइम्स यू कैन रिमूव द कार्पल, ये अलग कर सकते हो आप. जैसे इसको आप डिसेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्सिप, ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे यूनिट्स. लाइक गार्लिक आपने देखा उसमें क्लोव्स की तरह से अलग हो जाते हैं. एंड अनदर वन इज नोन एज सिनकार्पस. इन केस ऑफ सिनकार्पस दैट पिस्टिल विथ 2 और मोर यूनाइटेड कार्पल. अब इसमें पिस्टिल 2 या 2 से ज़्यादा, बट ये यूनाइटेड होते हैं, ये यू कैनॉट सेपरेट देम, आप इनको अलग नहीं कर सकते. तो सिनकार्पस मीन्स पिस्टिल विद यूनाइटेड कार्पल एंड एपोकार्पस मीन्स पिस्टिल्स विद सेपरेट कार्पल्स, आप उनको रिमूव कर सकते हो. देन ओवरीज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं. व्हाट यू मीन बाय सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी. एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओवरी, ये here you can see that they have again given here that what is the meaning of superior and inferior ovary. I told you yesterday that superior ovary means ovary is born at the top and occupies the highest position. That means कि ovary जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये टॉप पर है, यहाँ पर ऊपर है. and all the floral parts are arises below the ovary, है ना. स्टिग्मा स्टाइल जो भी, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल नहीं, एंथर्स एंड सीपल्स एंड पिटल्स, ये सारे इसके नीचे से निकल रहे हैं. देन आपने पढ़ा था इन सेमी इन्फीरियर ओवरी. सेमी इन्फीरियर ओवरी मीन्स दिस ओवरी इज नाइदर कम्प्लीटली सुपीरियर नॉर कम्प्लीटली इन्फीरियर एंड वेरियस फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज ऑन द रिम, है ना, जिसको आपने पढ़ा था पेरीगाइनस ओवरी. हाइपोगाइनस टाइप में ये था एंड दिस पेरीगाइनस. दैट मीन्स all the floral parts, that means calyx and corolla, arises from the rim of the आप यू कैन से थैलेमस और कह सकते हैं, उसके चारों तरफ से ये ग्रो करता है. एंड लास्ट वन इज़ द इन्फीरियर वन. इन्फीरियर में क्या होता था? दैट ओवरी बोर्न बिलो द लेवल ऑफ सेपल पिटल्स. ओवरी देखिए, देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, यू कैन सी दैट विच इज़ बिलो. एंड ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजिंग फ्रॉम द अबव. और ऑल द फ्लोरल पार्ट्स में हम किनको इंक्लूड करते हैं? वी इंक्लूड एंड्रूशियम, वी इंक्लूड सिपल्स, वी इंक्लूड पेटल्स. ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं. तो ये ओवरी से ऊपर निकल के होते हैं. देन वी कम टू वी आर टॉकिंग अबाउट द लोक्यूल्स. हम ओवरी की बात कर रहे थे. तो नाउ यू सी दैट नंबर ऑफ लोक्यूल्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी राइट नाउ मैंने आपको जो चीज़ बताई कि इन केस ऑफ ओवरी देयर आर बाईकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, ट्राईकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी ओवरीज आर देयर. तो कार्पल मीन्स जैसे मैंने बताया क्लोव्स की तरह होते हैं. तो वेन एवर यू कट द ओवरी, तो आपको ओवरी में चैम्बर्स दिखाई पड़ेंगे. सपोज दिस इज़ द ओवरी विच इज़ आई जस्ट ड्रॉ इट. तो अब इसको स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा, बिकॉज इनसाइड द ओवरी देयर आर ओव्यूल. सपोज यू कट इट बाय द हेल्प ऑफ अ ब्लेड, आपने इसको कट कर दिया. तो जब आप कट करेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखेंगे. क्यों दिखेंगे ऐसे? क्योंकि बिकॉज देयर आर द लोक्यूल्स प्रेजेंट एंड इनसाइड इट देयर आर प्रेजेंट ओव्यूल. तो कंपार्टमेंट के बेसिस पर, लोक्यूल मीन्स बेसिकली होता है कंपार्टमेंट. सपोज दिस इज़ वन कंपार्टमेंट. इन दिस केस यू कैन सी दिस इज़ वन कंपार्टमेंट. अगर ये ऐसे है तो 2 कंपार्टमेंट, अगर ऐसे है तो 3 कंपार्टमेंट, लाइक दिस तो 4 कंपार्टमेंट. तो दिस इज़ कॉल्ड कंपार्टमेंट्स, एंड कंपार्टमेंट्स को ही वी कैन कॉल इट लोक्यूल्स. तो इफ़ ovary is with one locule or you can say with one compartment, you call them unilocular. There are 2 locules, तो आप बोलेंगे bi, the trilocular, tetralocular, pentalocular are there, and ovules are also present inside it. You can see it easily in the diagrams. Suppose this is the locule, this is bicarpillary ovary I am drawing, and these are the ovules present. This is the placenta and this is the ovule. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इन बाइलोक्युलर ओवरी एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स. तो दे कैन बी मेनी ओव्यूल्स, दे कैन बी सिंगल ओव्यूल्स, कोई कितने भी नंबर में ओव्यूल्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको पैटर्न जो है वो दिया हुआ है कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी आपको दिए हुए हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ ओव्यूल्स काउंट कर सकते हैं. लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन मीन्स होता है कि कैसे लगे हुए हैं ओव्यूल्स इनसाइड द लोक्यूल. सपोज दिस इज द लोक्यूल, आई विल चेंज द कलर. दिस इज द लोक्यूल एंड here is a ovule which arises here and it is attached with the help of placenta. So it looks like that it originates from the margin, then you call them marginal placentation, like this. So there are certain kinds of placentation are given here. Placentation means arrangement of ovule inside the locule. That means ovule के अंदर किस तरह से
लॉक्यूल के अंदर किस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, बिकॉज ओव्यूल्स आर अटैच टू द ओवरी बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। आपको पता है ये ओव्यूल है तो दिस इज प्लेसेंटा, और ये सपोज ओवरी है तो इसके साथ ये अटैच हुआ है, तो प्लेसेंटा इसीलिए ओव्यूल के साथ होता है। तो देर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ ओवरी प्लेसेंटेशन इज गिवन हेयर, लाइक फर्स्ट वन इफ वी सी इट, this is known as first one is known as marginal placentation. Marginal means it ovule is attached with the margin. Next is the axile. Axile means axil बीच में से निकले हुए, you call them axile placentation. Then आपका C1 is parietal placentation. आप देखो इधर साइड से निकले हुए 2 ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए, that means ovary will be यूनिलॉक्यूलर, क्योंकि एक ही लॉक्यूल है तो ओवरी विल बी यूनिलॉक। आई एम टॉकिंग अबाउट द सी टाइप, दैट मीन्स पेराइटल ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर एंड प्लेसेंटा बियरिंग द ओव्यूल डेवलपिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये इनर वॉल ऑफ द ओवरी से लगे हुए हैं प्लेसेंटा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पेराइटल। एंड व्हाट डू यू कॉल इन द केस ऑफ एक्साइल, ओव्यूल्स आर बॉर्न एट द नियर ऑफ द सेंटर। आप सेंटर बीच में देखो ना, बीच में ये ऐसे करके ये प्लेसेंटा है और इसके साथ में इसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए, ये लाइक दिस। देन फ्री सेंट्रल, थर्ड वन इज फ्री सेंट्रल, and in case of free central, this one, oh just a minute, take the ink, this one is free central. Free central you can easily see that here there is nothing, only just placenta is there. So free central में ovary should be multilocular also, and ovules are born at the central column without any septa, that means कोई भी division line उनके अंदर नहीं होती है. Then come to the basal placentation which is E, बेस से निकल रहा है, तो बेसल प्लेसेंटेशन एंड सुपरफिशियल, जैसे आपका लेमन में होता है, लेमन को आप जैसे कट करेंगे जैसे आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड लेमन प्लेसेंटेशन. ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर यू कैन सी दैट ये बहुत सारे लोक्यूल्स बने हुए हैं. दीज आर चेम्बर्स, चेम्बर्स इज नोन एज लोक्यूल. तो देयर आर लॉट्स ऑफ लोक्यूल्स एंड प्लेसेंटा बियरिंग ओव्यूल्स डेवलप ऑल अराउंड द इनर सरफेस. अब ये सारे पे ऐसे ऐसे आप देखो छोटे 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 ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए हैं इन दिस डायग्राम. तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेसेंटेशन and various kinds of you can say compartments, locules which are present into the ovary. So this is all about the various kinds of floral parts and their arrangements in the flower, various kinds of terminology, and students you have to learn the various terminology so that in the next lecture we are going to discuss about the floral formula, floral diagrams, and also we are going to describe one or two flowers which are given in your syllabus, and for that you need to learn all this terminology so that we can use these terminologies in describing the flower. So that is all for today.